there is a widow woman is there. और एक विधवा स्त्री है. So there is a widow woman who has a child. एक विधवा स्त्री थी जिसका एक बच्चा था. So she is thinking about her future like this. और वो अपने भविष्य के बारे में ऐसे सोच रही थी, I am going to die with hunger. मैं भूख के साथ ही मर जाऊंगी. And my boy, I have a small boy and we are going to end up our day. और मेरा छोटा सा लड़का है और हमारा दिन का ऐसे ही अंत हो जाएगा. So the widow woman who has a child, तो वो विधवा औरत जिसके पास उसका बच्चा था, thinking like this, वो ऐसे सोच रही थी, very soon we are going to die with hunger. बहुत जल्दी भूख के साथ हम मर जाएंगे. Very soon our life is going to break down. बहुत जल्दी हमारा जीवन टूट जाएगा. So there is no hope in that widow woman. वो विधवा औरत के पास कोई आशा ही नहीं थी. She couldn't find any small hope for tomorrow. वो आने वाले कल के लिए छोटी सी आशा भी नहीं ढूंढ पाई. What she has in her hand, जो उसके हाथों में था, what her circumstances says to her, जो उसकी परिस्थितियां उसे कहती थी, what the suffering is speaking into her life is, it's done. जो उसके जीवन के कष्ट उसको बोल रहे थे कि सब कुछ खत्म हो चुका है. So we see in the Bible this story. हम बाइबल में ये कहानी देखते हैं. So there is a widow woman in the Bible. बाइबल में एक विधवा औरत है. There was a famine in that country. और उस देश में अकाल पड़ गया था. And the widow has only little amount of food for her and for her son. और उस विधवा औरत के पास केवल थोड़ी मात्रा में ही उसके लिए और उसके बेटे के लिए कुछ था. So if that is over, there is no life for them. यदि वो खाना खत्म हो गया तो उनके लिए और कुछ बचा नहीं, कोई जीवन नहीं है. So she is believing not life, she is believing for death is coming soon. और वो अपने लिए जीवन का विश्वास नहीं कर रही थी, वो विश्वास कर रही थी कि जल्दी ही मौत आएगी. So in the middle of that circumstances, और इस परिस्थितियों के बीच में, in the middle of that great famine is ruling over the country, इतने बड़े अकाल में भी जो अकाल उस देश पे पड़ा हुआ था, there is one hope arise. लेकिन वहां पे एक आशा जाग उठी. That is the God's hope. वो परमेश्वर की ओर से आशा थी. God is speaking to that woman through prophet Elijah. परमेश्वर उस विधवा से बात कर रहा था भविष्यद्वक्ता एलिया के द्वारा. Do you know what is that words? आप जानते हैं वो वचन क्या थे? You will not die of hunger. कि तुम भूख से नहीं मरोगी. Your circumstances will not let you die. तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें मरने नहीं देंगी. Your circumstances and your problems, your emptiness in your kitchen or in your hands will not make your life empty. तुम्हारे किचन में खाली पड़े हैं, सब कुछ नहीं भरा, तुम्हारे जीवन में सब कुछ खाली है, तुम्हारे जीवन का खालीपन तुझे ऐसे ही खाली नहीं रहने देगा. She has her future empty. उसका भविष्य खाली था. And she is speaking to the boy also that the boy also has no future at all. और वो अपने लड़के से भी बोल रही थी और उस लड़के का भी कोई भविष्य नहीं था. There are in so many families like this. और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं. Mother is speaking like this. We have no hope in our family. Let's end up here. Let's give up here. और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, माँ कहती है हमारे परिवार के लिए तो कोई आशा नहीं है, आओ अपने जीवन को यहीं पे खत्म कर दो. It does not mean she don't have a love for the child. इसका ये मायने मतलब नहीं है कि अपने बच्चे के लिए उस माँ के पास प्यार नहीं It है. does not mean father has no love for the child. इसका ये भी मतलब नहीं कि पिता के पास बच्चों के लिए प्रेम नहीं है. It does not mean that any family in the world, any child in the world don't want to give up. इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी संसार में कोई भी बच्चा या कोई भी हार मानना चाहते हो. At some breakdown point, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जीवन के समय में जब जहाँ पे सब कुछ टूट जाता है, in every life, in every season, for every person, हर एक जीवन में हर एक समय के अनुसार हर एक व्यक्ति के समय में there is a discouragement ruling like this. Let's give up.
इस प्रकार की निराशा उनके जीवनों को चलाती है और कहते चलो हार मान जाओ, Let's end our life. अपने जीवन को खत्म कर दो। Let's say to our children, we cannot do for you anything. Let's stop it now and stay wherever you are. और अपने बच्चों को कहते हैं कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते कि अपने तुम्हारे जीवन के लिए, और यहीं पे रुक जाओ और यहीं पे सब खत्म कर दो। Maybe in the same way, her future also saying to her, there is no future for you. Tomorrow is not there in your life. शायद उसके जीवन में भी उसका भविष्य से कह रहा होगा कि तुम्हारे जीवन में आने वाला कल है ही नहीं है। So in the same way, वैसे ही when we see in the Bible, there are many stories like the people, the normal, ordinary persons having no hope and giving up something. जब हम बाइबल में देखते हैं ऐसे लोग, साधारण से लोग जिनके पास कोई जीवन जीने की आशा नहीं थी, जिनके पास आशा है ही नहीं थी, And they end up in a asking alms. और आखिर में वो अपने आप से ये पूछना शुरू किए। They don't have hope for the healing. उनके पास चंगाई के लिए आशा ही नहीं है। Many people today in these days don't have a hope for restoration of their life. बहुत सारे लोग हैं आजकल उनके जीवन में कि उनका जीवन नया हो जाएगा, ये आशा ही नहीं है। We see how many times this discouragement comes. हम देखते कितनी बार निराशा आती है। How many times we see like paralyzed people laying on the floor. हम कितनी बार देखते हैं कि जो व्यक्ति जिनको अधरंग हो जाता है जमीन पे लेटे होते हैं। How many times we see a famine is hitting the country. कितनी बार हम देखते हैं कि बहुत देशों में अकाल पड़ जाता है। That many times we see in the Bible, God is speaking to each and every person, to a normal, extraordinary person dealing with depression, dealing with discouragement, no hope for future. God is speaking to them right now. और उन दिनों में भी जहाँ अकाल पड़ जाता है, लोग डिप्रेशन में होते हैं, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं होती है, ऐसे दिनों में भी, साधारण से दिनों में भी परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है। When fear is ruling the people, God is speaking boldly. जब डर लोगों के ऊपर राज्य कर रहा होता है तो परमेश्वर उनसे हिम्मत से ढांढस बांध के बात करता है। Maybe people are looking at the fear. शायद लोग डर की ओर देखते होंगे। People are finding no aim in their life because of the fear is speaking to them louder in their life. शायद लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है क्योंकि उनके जीवन में डर की आवाज ज्यादा है। Some young girls and young boys are telling like this, I don't know what I am doing, I don't know my future, I don't know why I am living in this world. कुछ जवान लड़के लड़कियां ऐसे कहते हैं, मुझे पता ही नहीं मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे क्या करना है, और मुझे पता ही नहीं मैं क्यों जीवन जी रहा हूँ या जी रही हूँ। Today I want to tell you, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, in that season, in that second, God is saying one thing to all of और us. उस सीजन में, उस सेकंड में परमेश्वर आपको एक बात कह रहा है, Arise and go. उठ खड़े हो और जा। Let's say, arise and go. Arise and go. This is the words God wants to push into our ears to hear. और ये जो वचन है परमेश्वर चाहता है कि हमारे कानों तक पहुंचे और हम सुने कि खड़े हो और जा। Jesus wants to say to all the paralyzed people, Jesus wants to say to all the people, those who wants healing, there it is the words, arise and go. और यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को जो इस समय जिनके पास अधरंग है, जो बीमार है या फिर जो चंगाई की उम्मीद रख रहे हैं, यीशु कह रहे खड़े हो और जाओ। When we see in the book of 2 Kings, जब हम दूसरा राजा की पुस्तक में देखते हैं, chapter 8 verse 1, 8 अध्याय उसका 1 वचन में देखते हैं, Elisha is talking to a woman. एलीशा वहाँ पे उस स्त्री से बातें कर रहा था। So Elisha, prophet Elisha is talking to a woman, Shunammite woman. यहाँ पे भविष्यद्वक्ता जो एलीशा था वो सुनमी स्त्री से बातें कर रहा था। There is a famine is hitting the country, you arise and go. और कहा कि तुम उठ खड़े हो क्योंकि इन देशों में अकाल पड़ा हुआ है। Maybe famine is for them, that is the season of their famine. और वो उन समय अकाल था, भूखमरी थी वहाँ पे, उन समय उनके लिए था ये। In our lives, what is our famine?
हमारे जीवन में हमारे क्या अकाल है? अकाल यानी भूखमरी हो जाना। What is that one name, the one thing that is ruling in your life like a famine? ऐसी कौन सी एक चीज है जो आपके जीवन में आपको आपके ऊपर शासन कर रही है अकाल के What जैसे? is the famine? Is it fear? Is it confusion? Is it discouragement? आपके जीवन में ऐसा कौन सा अकाल है? क्या वो डर है, निराशाएं है, निरुत्साह होना है? What is that famine speaking to you in your life like a shouting? आपके जीवन में वो अकाल जो पड़ चुका है क्या कह रहा है? किस बात को चिल्ला रहा है? What is the famine in your life, in your family situation speaking louder than God's hope? आपके परिवार में, आपके जीवन में ऐसा कौन सा अकाल है जो परमेश्वर के वचन से ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रहा है? Like prophet Elisha is speaking to the woman. जैसे भविष्यद्वक्ता एलीशा उस स्त्री से बातें कर रहा था। God wants to tell to all of us in our ears, shouting loudly, arise and go. परमेश्वर हमारे कानों में जोर से आवाज देके कहना चाहता है कि उठ खड़े हो और जा। Arise from the situation where you are. आप जिस स्थिति में है उस स्थिति से खड़े हो जाओ। Arise from the famine from where you are. और जिस अकाल में आप पड़े हुए हो वहां से उठो और खड़े हो जाओ। Change your place. अपनी जगह को बदलो, Change your thoughts. अपने विचारों को बदलो। You move your circumstances. आप अपनी परिस्थितियों को खुद हटाओ। Means arise and go from what is the famine to the prosperous land. और उठो और जाओ, जहाँ अकाल पड़ा हो उस अकाल पड़ी हुई जगह से उन्नति हुई भूमि में जाओ। What thoughts are your famine in this season? इस सीजन में आपके कौन से विचार हैं जो आपके लिए अकाल के जैसे What हैं? are the thoughts that are ruling you like a famine? ऐसे कौन से विचार है जो आपको अकाल पड़ गया ऐसे आपके जीवन पे शासन कर रहे हैं? God is speaking right now. आपसे इसी समय क्या है जो बातें कर रहा है? He is telling us through the scriptures. वो हमें वचनों के द्वारा कह रहा है। Just listen his voice. केवल उसकी आवाज को सुनो। What God's voice will tell to us. परमेश्वर का आवाज हमें क्या कहता है? The word from the Bible. बाइबल से जो वचन है, Arise and go. उठ और जा। God speaks, arise and go. परमेश्वर कहता है उठ और जा। You obey it by faith. आप विश्वास के द्वारा उसकी आज्ञा माने। If you have faith, you will move the mountains. यदि आपके पास विश्वास है तो आप पहाड़ों को हटा देंगे। Maybe your life feeling like a purposeless. शायद आपका जीवन आपको उद्देश्यहीन लगता होगा। Move from this place where you are to the place where God is calling to you. आप जिस जगह पे हैं उस जगह से हटके जहाँ पे परमेश्वर आपको बुला रहा है उस जगह पे जाएं। God is not calling to from a famine place to another famine place. परमेश्वर आपको एक जहाँ पे अकाल पड़ गया उस जगह से दूसरी जगह जहाँ अकाल पड़ा है वहाँ नहीं बुला रहा। God is calling you to arise and go to the prosperous land I am showing to you. परमेश्वर आपको कह रहा है कि उठ खड़े हो और उन्नति की भूमि में जा, जगह में जा जो मैं तुझे दिखा रहा हूँ। Maybe you don't have a peace in your heart. That is the famine you are ruling. शायद आपके मन में शांति नहीं है, आपके जीवन में ये अकाल चल रहा है। God wants to say to all of us through his scripture. परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हम सबको कहना चाहते हैं, I have given you the potential to arise and go. मैंने तुम्हें इतनी सामर्थ दी है, क्षमता दी कि तुम उठ खड़े हो और जाओ। You do have a life. You no need to speak lifeless words. आपके पास जीवन है, आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने जिनमें जीवन नहीं है। You do have more inside of you when you are feeling like emptiness inside of you. जब आप अपने अंदर खालीपन महसूस करते हैं उस समय भी आपके अंदर और अधिक है। Sometimes it is a call of invitation for you कभी कभी आपके लिए एक आमंत्रण होता है, आपको बुलाहट दी जाती है to arise and go. कि आप खड़े हों और जाएं। Sometimes it is something that he wants to move you from one place to another place. कभी कभी कुछ ऐसी बात होती है परमेश्वर आपको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना चाहता It है। is a call that it moves from danger to safety. ये एक ऐसी बुलाहट है जो खतरे से सुरक्षा की ओर आगे बढ़ना। Sometimes it is a call you are listening that it is a mission it's going to start in you. कभी कभी ऐसी बुलाहट होती है जो मिशन जो कार्य शुरू होने जा रहा है आपको बुलाहट मिल रही होती है। Sometimes it's bringing a healing for your life.
कभी कभी आपके जीवन में वो चंगाई को लाती है, Sometimes it is speaking a restoration for our lives. कभी कभी हमारे जीवन में एक नयापन को लाती है, Sometimes it is to prepare you for something beginning. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ नई शुरुआत के लिए तैयार कर रही होती है, Because God has a bigger plans in our lives. क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे जीवनों के लिए बड़ी योजनाएं When we हैं। see ourselves very small, जब हम अपने आप को बहुत छोटा देखते हैं, when our struggles show us very small, जब हमारे मुश्किलें के सामने हम अपने आप को बहुत छोटा छोटा देखने लगते when हैं, our problems show us you are weak, जब भी समस्याएं हमें दिखाती हैं कि हम कमजोर हैं, that time उस समय through His word God is speaking to all of us. उसके वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबसे बात कर रहा You होता are है। not weak, arise and go. आप कमजोर नहीं हैं, आप उठें और जाएं। You are not waste, arise and go. आप व्यर्थ नहीं हैं, आप उठें और जाएं। Your life is not end here, don't give up, arise and go. आपके जीवन का अंत यहाँ नहीं हुआ है, उठो और जाओ। Today many of the lives आज बहुत सारे ऐसे जीवन हैं, we see in India, हम इंडिया में देखते हैं, many women, बहुत सारी महिलाएं हैं, if they are rich or poor, no, अमीर हैं या गरीब हैं, लेकिन फिर भी it's no matter. कोई मायने नहीं रखता। Today many youngsters, आजकल बहुत सारे जवान हैं, whether they belong to rich family or poor family, वो अमीर परिवार से हैं या गरीब परिवार से हैं, something famine is ruling their lives. फिर भी उनके जीवनों में कुछ ऐसी बात जो अकाल पड़ा हुआ है। Can you able to name it? क्या आप उसे नाम दे सकते हैं? What is that one ruling in their lives? वो अकाल क्या है जो उनके जीवनों पे शासन कर रहा है, What चला is रहा that है? famine telling you give up here? वो कौन सा अकाल है जो कह रहा है कि यही हार मान जाओ? God wants to add another more beautiful years to you. परमेश्वर एक और सुंदर साल आपके जीवनों में He जोड़ना wants चाहते to हैं। add another prosperous life to us. परमेश्वर एक और उन्नति का जीवन हमारे जीवन में देना He चाहते wants हैं। to bring a breakthrough in our lives. परमेश्वर हमारे जीवनों में छुटकारा लाना चाहते हैं। That breakthrough comes वो छुटकारा आता है only when we listen and obey to the voice that is saying arise and go. केवल तब वो छुटकारा आता है जब हम उस आवाज को सुनते हैं जो आवाज कहती है उठो और जाओ। When I feel like I have settled in my life with my career जब कभी ऐसा महसूस होता है मुझे कि मेरे जीवन में, मेरे कैरियर में मैं सेटल हूँ, and still God speaks to me in a small voice. लेकिन फिर भी परमेश्वर छोटी सी आवाज से मुझसे बात करता है। Never settle here, this is not your place. कभी भी यहाँ है तक ही सेटल मत रहो, ये तुम्हारा जगह नहीं है। I have many plans for you. मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। So my life again started finding something bigger than my career. तो मेरा जीवन फिर से शुरू हुआ कि मैं अपने कैरियर से बढ़कर कुछ ढूंढने लग गई। That is serving the people of God. वो था परमेश्वर के लोगों की सेवा करना। That is bringing the people to God. वही था कि लोगों को परमेश्वर की ओर लेके आना। That is worshiping God like never before. कि परमेश्वर की आराधना करना पहले से कहीं बढ़कर। Is it something that God speaks to you, arise and go? क्या ये कुछ ऐसा है जो परमेश्वर आपसे बातें करता है कि उठो और जाओ? Is there something that God speaks to you, never settle here, don't give up here? क्या ये कुछ ऐसा है कि परमेश्वर आपसे बातें करता है कि कभी भी यहाँ पे ही मत सेटल रहो, उठो और जाओ? Obey. उसकी आज्ञा If you मानो। want to see breakdown in your life, अगर don't listen to God's voice, don't do anything, just give up. अगर आप अपने जीवन में चाहते हो कि आपका जीवन टूट जाए तो परमेश्वर की आवाज मत सुनो, जहाँ है वहीं रहो। If you want to unfold God's prosperous life in your life, अगर आप परमेश्वर का उन्नति भरा जीवन अपने जीवन में पाना चाहते हैं, you need to say one thing. आपको एक बात कहनी होगी। You need to say to yourself. आपको अपने आप से कहना You होगा। need to hold on to the word of God that is saying, arise and go. आपको परमेश्वर के वचन को थामना होगा जो वचन कहता है उठो और जाओ। Even Jesus did it. यीशु मसीह ने भी ऐसा He किया। died on the cross and he arose and go into the heaven. यीशु मसीह सलीब पे मारे गए और जी उठे और स्वर्ग में गए। And Jesus said to many people, arise and go. यीशु ने बहुत सारे लोगों से कहा कि उठो और जाओ। So prophet Elijah speak to the woman, तो यहाँ पे भविष्यद्वक्ता एलीशा उस स्त्री से बात कर रहा है, do what I say. जो मैं कहता हूँ वही करो। Make for me bread मेरे लिए भी तुम एक रोटी बनाओ
and your jar will not be empty. और तेरा बर्तन खाली नहीं रहेगा. So at the time it speaks not to the hunger of the woman, but it speaks life to her dead child. उस समय वो जो स्त्री की भूख से बात नहीं कर रहा था, वो स्त्री थी जो उसके बच्चे के भविष्य की बात कर रहा था. Because after that the child died of something, not because of hunger. उसके बाद उसका जो बच्चा था भूख से नहीं मरा, कुछ और चीज से मरा. Means the one thing you are thinking in your life, something is stucking me down, that is not your breaking down point. When you don't listen to God, that He is saying arise and go, that is your stuck point. When you don't listen. और शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं कहीं अपने जीवन में वहीं यहीं पे रुक के रह गया हूँ, फंस गया हूँ. ये आपके जीवन का वो पल नहीं जहाँ पे आप टूट जाओगे, गिर जाओगे. आपके जीवन में तब आप गिरोगे जब आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनेंगे. वो आवाज़ है उठो और जाओ. So she listened to Prophet Elijah. तो उस स्त्री ने भविष्यद्वक्ता एलीशा की बात मानी. And the Shunammite woman listened to the voice of God. और जो शुनेमिन स्त्री थी उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना. Arise and go. उठो और जाओ. She went and came back. God restored her land. और वो उठी और गई और परमेश्वर ने उसके सारे भूमि को फिर से नया कर दिया. It's all about when we listen to the voice of God, you will go from breakdown to breakthrough. और ये है जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, हम छुटकारे से छुटकारों तक आगे बढ़ते जाते हैं. Today what God is saying to all of us. आज परमेश्वर हम सबको क्या कह रहे हैं? Is there anything that you want to listen from God? क्या कुछ ऐसा है जो आप परमेश्वर से सुनना चाहते हैं? Let us experience that. आइए हम उसका अनुभव करते हैं. Let us experience what the widow woman experienced. आइए हम अनुभव करते हैं जो उस विधवा स्त्री ने अनुभव किया. Let us invite that experience of breakthrough in our lives through listening to God. हमारे जीवन में भी वो छुटकारे के अनुभव को हम अनुभव करते हैं परमेश्वर की आवाज सुनने के द्वारा. What is that word? वो वचन, वो शब्द क्या है? Arise and go. उठो और जाओ. If it really speaking to all of us today, यदि आज ये वचन हम सबसे बातें कर रहा है, let's say to God one thing. आइए हम परमेश्वर से एक बात कहते Yes, हैं. Lord, I trust in you when circumstances are saying empty. हाँ प्रभु, मैं आप पे भरोसा करूंगी या करूंगा जब मेरी परिस्थितियां कह रही हैं कि मैं खाली हूँ. When my problems say it's end now, I will obey and I will trust in your जब word. मेरी समस्याएं कहेंगी कि ये खत्म हो चुका है, मैं आपकी आज्ञा मानूंगी और मैं आप पे भरोसा करूंगा. And let's obey to the word. What is that word? Arise and go. आइए हम उस वचन की आज्ञा मानते हैं. वो वचन क्या है? उठो और जाओ. Let's all close our eyes and say one thing. आइए सभी अपनी आंखों को बंद करते हैं और एक बात कहते हैं. Lord, today I listen the one word that you are talking to me right now. प्रभु, आज मैंने एक वचन सुना है जो आप मुझसे बातें कर रहे हैं. Arise and go. उठो और जाओ. I don't want to give up my life in the middle. मैं मेरे जीवन को आधे में ही हार नहीं मानना चाहती. I don't want to experience the breakdown. मैं नहीं चाहती कि मेरे जीवन में टूटेपन को महसूस करूं. I want to see the breakthrough that you are giving in my life. मैं मेरे जीवन में वो छुटकारा देखना चाहती हूँ जो आप दे रहे हैं. I want to prosper with your plans, Lord. मैं आपकी योजनाओं के साथ उन्नति पाना चाहती हूँ. I can do all things through you who strengthens me, Lord. जो आप मुझे सामर्थ देते हैं, मैं आपके द्वारा सब कुछ कर सकती I हूँ. want to obey to your word, arise and go. मैं आपके वचनों को आज्ञा मानना चाहती हूँ कि उठो और जाओ. I want to put my trust in all of you, Lord. मैं मेरा सारा भरोसा आप पे रखूंगी प्रभु. Thanking Lord for speaking to me right now. धन्यवाद प्रभु मुझसे बातें करने के लिए. These words are enough for me, Lord. ये वचन मेरे लिए काफी है. That speaks louder than my discouragement. जो मेरी निराशाओं से ऊंचा होकर That बोलते हैं. speaks louder than my failures. जो मेरी असफलताओं से ऊंचा होकर That बोलते हैं. speaks louder than my giving up attitude. जो मेरा हार मान जाऊंगी इस स्वभाव से ऊंचा आवाज That में बोलते speaks हैं. louder than my famine in my family. जो मेरे परिवार में अकाल पड़ा है, जो उससे ऊंची आवाज में बोलते हैं. Thanking you, Father. धन्यवाद पिता. Bless all of our journey. हम सबकी सफर We करें. speak in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं. Amen. आमीन.